अपने आप से कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगता है. हाउ यू थॉट दैट नेम शादी अभी बाकी है? या मेरे भी बाकी है ना. So it's a real topic. शादी अभी बाकी है, एक्चुअल में बाकी है शादी. And you know this film is getting released on 17th November. This coming 17th November, this film is getting released and in association with AppCom. Excuse me. Yes. मेरी भी शादी बाकी है. That's true. So और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी शादी बाकी है और मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद शादी पूरी हो सकती है. And we have so many views and reviews which will take after this release. And this film is going to be released on 17th November, right? In association with Appcom Impex LLP. So yeah. And the film music is being distributed by Z Special. So I would like to call Vijay Takriwal and Sharmeen, Lokesh Gar. Our film is being distributed in association with Apex. So the team of Apex has specially come from Jaipur, and so I would like to call them here, and I will honor Prem Chopra ji, who is the legendary star of Bollywood, and we thank him to be part of our film, and look forward to you all liking the film. So ladies and gentlemen, before so friends, it's a lot. We have the one and only, the legendary of our Bollywood industry, and also मैंने जैसे बताया कि महानायक और icon of our generation. So sir, what do you say to our generation? कुछ few words from your mouth. Well, it's quite a tragedy with me. Nowadays, people like my friend, they think their father was my fan. So I'm forced to play the roles of fathers and grandfathers nowadays. So I would like to play different characters, but I'm playing different characters also. But this film has been made with great amount of passion, very hard work, and I would give 100% to Mansi because she has been solely responsible for making this film. It is with all the difficulties she did it so well and she completed the film. Mansi, come here. Please come here. And you must give her a big hand because it has hard work, it's total devotion and dedication to the film that she's been able to make it and complete it and going to release it. I'm very glad for her. It's very difficult to make a film like this and also be able to release it. But she has done a good job and as an actress, she's an actress, producer, as well as director and so many other things combined into one, and editor also. So I wish her all the best and this picture, and we need your cooperation, all the press people to publicize this film in a very positive manner so that our hard work should not go waste. Thank you so much. Thank you all the best. God bless you. Sir, I would like to ask you, you are already legend and you have done so many films in our industry. So what sets aside Shaadi Abhi Ab Baki Hai from the rest films? It's a different concept of cinema. Nowadays the people are accepting different cinema. It is definitely, the picture should be accepted by people because it's very interesting. And if this picture succeeds, it will be able to create a trend by itself for many other people to follow.
बाबू सर इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, आपका किरदार किस तरह का है? देखिए मेरा किरदार जो है एक जो मानसी है उसके बाप का है। बहुत अच्छा किरदार है, 3 स्टेजेस में बनी है पिक्चर। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट टोटली। अब कैसे बनाई, बड़े खूबसूरत तरीके से बड़े पैशन से बनाई है, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ मानसी ने बनाई है। माई कंग्रेचुलेशंस टू हर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। और आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए अभी इस स्टेज पे कि भाई ये इसको प्रमोट कीजिए ज़रा अच्छी तरह से, पॉजिटिव तरीके से। जो बाकी सब चीज़ें नेगेटिव तरीके से होती है, लेकिन ये फिल्म के बारे में उसकी मेहनत जो है बेकार नहीं होनी चाहिए। शादी का जो इंस्टीट्यूशन आज कितना वैलिड है सर? शादी तो अल्टीमेटली इज दी थिंग इट विल स्टे देयर फॉर एवर। हालांकि अगर चाहे आप शादी में मोहब्बत कहें या एडजस्टमेंट कहें या कुछ भी कहें, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू स्टे इन रियल लाइफ, इट्स गोइंग टू स्टे। सर बॉलीवुड में हम देखते हैं अक्सर शादियाँ बहुत सारे टूट जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण तुम मुझसे पूछना चाहिए जिनकी शादी टूट गई। मैं तो 45 साल हो गए मुझे शादी की। सर तो आपका सीक्रेट क्या है शादी बरकरार रखने का? यही है कि भाई you have to adjust yourself with your spouse, and she has to adjust with you. That's how the things go. And after a certain time, a friendship develops, a companionship develops, and you want to stay together because of that reason. मैडम आप कुछ बताइए कैसे पहल हुई है इस फिल्म की, क्या आइडिया? मानसी जी जब मुझे मिली तो उन्होंने कैरेक्टर सुनाया, पिक्चर सुनाई। मैंने कहा ये अलग किस्म की पिक्चर है, ये कर लेनी चाहिए। तो फिर मैंने इरादा किया इस पिक्चर को बनाने, तो इसीलिए मैंने हाँ किया। जैसा कि मानसी जी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, इसमें एक्ट भी किया है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? भाई देखिए, जो शी इज़ वेरी एम्बिशियस, शी इज़ पुट इन ऑल हर एफर्ट्स एंड शी हैज़ ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू accumulate things and make it a successful film, complete the film, which is very difficult nowadays, as you already know. So this is my kudos to her. She's done a great job, and I really appreciate her hard work, total dedication, devotion to the whole thing. And now you have to pick this picture up very positively. Thank you. Thank you so much sir. इस फिल्म में प्रेम जी का हमें काफ़ी सपोर्ट मिला एंड थैंक्स टू प्रेम जी, संजय मिश्रा जी, वो भी हमारे मूवी में थे। तो काफ़ी अच्छा एक्टर्स का जब सपोर्ट मिलता है, सो एज ए डायरेक्टर आई कुड प्ले मोर एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। जो हमारे पिक्चर का आइडिया है, इसमें एक कहानी के अंदर 3 अलग एंडिंग है। तो बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम एक ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, बट येट टिपिकल कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म। सो सब्जेक्ट डिफरेंट था, तो कन्विंस करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट लकीली दे ऑल बिलीव्ड इन मी एंड मूवी इज़ नाउ कंप्लीट एंड रेडी फॉर रिलीज। जैसा कि कंटेंट की बात करें तो बहुत अलग कंटेंट है, ये शादी में बाकी है, ये कंटेंट कहाँ से आपके माइंड में आया, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली ये जो फिल्म है, इट्स अबाउट द चॉइसेस दैट वी मेक। हमारी जो चॉइस होती है वही हमारा कल बनाता है। तो मूवी इज़ मोर अबाउट द चॉइस दैट वी मेक। और अगर हम ये चॉइस लेते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, एंड ऐसा होता ऐसा। तो मूवी इज़ अबाउट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ लाइफ। और अगर आपको लाइफ में 3 मौके मिले एक डिसीजन लेने के, तो कैसा होगा? तो डिसीजन 1, डिसीजन 2, डिसीजन 3। तो ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है जो एक शादी के ऊपर बेस्ड है, इवेंट के ऊपर बेस्ड है। तो पूरी मूवी कलरफुल है, हैप्पी है, ब्राइडल। प्रेम जी एक सवाल था आपके लिए। ये बूम उधर ले बाबू, ये थोड़ा बूम नीचे कर दे बाबू, बूम उधर ले। हाँ आ रहा है। एक सेकंड क्या सवाल है? प्रेम जी आजकल शादियाँ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है जीएसटी आने के बाद, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अच्छी बात है, दहेज कम हो जाएगा और शादी जो है जल्दी हो जाएगी एकदम। किसी ने पसंद, लड़का लड़की ने पसंद किया, कहेगा चलो अब शादी कर लेंगे, मंदिर में जाके शादियाँ कर। और बहुत ही अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी नई चीज़ें सीखी एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म एंड आई होप दैट यू विल ऑल लव द फिल्म। Yeah.
सो आपने प्रेम जी के साथ में काम किया, किस तरह का एक्सपीरियंस है? बॉलीवुड स्टार में काम किया, किस तरह का एक्सपीरियंस है? हमारे मूवी में प्रेम जी थे, संजय मिश्रा थे, दे वर ऑल लाइक लेजेंडरी एक्टर्स एंड दे वर वेरी वेल एक्सपीरियंस एंड विद देम द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज अगर कोई सीन होता है देन दे टेक दैट सीन टू अनदर लेवल जो आपने विजुअलाइज किया होता, दैट इज द केस विद गुड एक्टर्स इवन विद शिरीन यू नो एंड शेक्सपियर सो एज अ राइटर डायरेक्टर but yes and Sayanika as well and all the actors of course, so what happens with them they take it to another level. So that is the beauty, especially with प्रेम जी. और हमारी मूवी में जो कैरेक्टर था वो एक डॉन फादर का था. So being like a डॉन फादर, उसके अंदर प्रेम जी के सिवाय उसके अंदर कोई और I could not even think of. So they fit into that character and they have that persona to make it larger than life and they amplify the character even more. इस पिक्चर का हमने दिल्ली शूट किया, मनाली, श्रीनगर. We shot a little bit in Paris, Singapore as well, and so we beautifully shot the film. आप इस फिल्म में डायरेक्ट भी कर रही, प्रोड्यूस भी कर रही, एक्ट भी कर रही, तो ये तीनों काम किस तरह से आप मैनेज कर रही हैं इस फिल्म में? इसके लिए मुझे काफ़ी होमवर्क करना पड़ा एंड लकली माई टीम वॉज वेरी सपोर्टिव. सो राइटिंग वॉज माई पैशन बिकॉज इट इज माई इंग्लिश ऑनर, सो दैट वॉज समथिंग विच आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग. But and acting I've done like so many South films, Hindi films, so that was on an autopilot mode. But directing is something which I was doing for the first time. So उसमें काफ़ी मैं grow करी, like you know by the first schedule and मैं last schedule देखूँगी तो I was a total different person by that time. इस फिल्म में देखिए तो प्रेम चोपड़ा जी के साथ साथ संजय जी हैं और भी कई शाकाश है, शीतला सिंह भी मजे हुए हैं, तो इनके साथ पूरे सभी लोग के साथ टीम वर्क में काम करके आप मेरे को बहुत अच्छा लगा बिकॉज मेकिंग ए फिल्म इज इन द एंड इट्स ए टीम वर्क, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल. अगर मैं सोचूं कि मैं अकेले सब कुछ करूँगी इट कांट हैपन. सो यू नीड द राइट पीपल, यू नीड द टीम वर्क एंड यू वांट द टैलेंटेड टीम. यू नो इट्स जस्ट द टीम इटसेल्फ. यू नीड द राइट टैलेंट एंड द राइट पर्सन जो आपने कैरेक्टर सोचा है, जो आपको जिस तरह आवाज़ और जो फील और जो आपको इमोशन चाहिए उसके लिए यू वांट द राइट पर्सन. सो दैट इज द ब्यूटी. टाइटल के बारे में बात करें, शादी भी बाकी है, तो ये फिल्म किस तरह की होने वाली है? लाइक कॉमेडी टाइप होगी या किस तरह की फिल्म होगी? क्योंकि इसमें काफ़ी हम फिल्म के सीन में ट्रेलर में देख चुके, काफ़ी लाइक गोली वगैरह चलाई जा रही है खुद पे, तो फिर किस तरह का? आई थिंक नर्व रस है, 9 इमोशंस है इसमें. नहीं, द मूवी हैज़ गॉट 3 इमोशंस. द मूवी इज़ अबाउट 3 लाइव्स कि अगर लाइफ में अगर आपको 3 चांसेस मिले कोई काम करेंगे तो कैसा होगा. सो इस मूवी का यूनिक USP इज़ इट स्क्रीन प्ले. इसमें एक पिक्चर के अंदर 3 अलग अलग एंडिंग्स हैं, तो अगर आप ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा सोचते तो ऐसा होता. सो दैट मेक्स दिस फिल्म वेरी डिफरेंट कि जो भी इस मूवी को देखेगा दे हैव नेवर सीन ए फिल्म लाइक दिस बिफोर. इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेमा. आप तीनों से मेरा सवाल है कि आप तीनों का इस फिल्म में किस तरह का किरदार है उसके बारे में जानना चाहिए कि फिल्म में काम करके कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज ब्लोन अवे बाय मानसी. मैंने बोला ये क्या चीज़ है, हर चीज़ में अपना हाथ, हर चीज़ में अपना दिमाग. आई वाज लाइक ये लड़की मुझे जो कैरेक्टर देगी मैं तो कर ही लूँगी बिकॉज शी हैड हर हैंड्स इन एवरीथिंग. कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से बात कर रही थी, वो लाइट मैन से बात कर रही थी, जब मुझे कैरेक्टर समझा रही थी तब वो हेयर ड्रेसर से बात कर रही थी, मेकअप आर्टिस्ट से बात कर रही थी, स्पॉट बॉय से बात कर रही थी और मुझे कैरेक्टर भी समझा रही थी. सो आई वॉज लाइक आई बिकेम हर फैन ऑन डे 1. आई सेड जैसी भी पिक्चर बनेगी इनके साथ मुझे काम करना ही है. सो इट वॉज फैंटास्टिक, इट जस्ट ब्लू माय माइंड. मेरा जो कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग मानसीज बेस्ट फ्रेंड. मेरा एक NRI का कैरेक्टर है जो जब वो यू लुक लाइक तो जब वो प्रॉब्लम में फंस जाती है, जब फिल्म आप देखेंगे आपको पता चलेगा, तो शी कॉल्स मी, आई एम देयर, और हम दोनों बैठ के वो स्कीमिंग करते हैं. तो इस फिल्म में आपको वो जो लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते कहते हैं ना, इसमें आप देखेंगे लड़का लड़की दोस्त थे और क्या स्कीमिंग करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं. तो वो जो बॉन्डिंग है, लाइक BFFs जो बोलते हैं आजकल, तो दैट यूल गेट टू सी. वी आर लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स. शी स्टेइंग इन इंडिया, आई एम स्टेइंग अब्रॉड. ये जो हमारा केमिस्ट्री है, प्लानिंग है, रात को सब हो रहा है, शी इज़ यू नो क्लाइमैक्स के टाइम पर है, इट्स अमेजिंग. तो दैट्स माई कैरेक्टर. आई एम अ जंकी, आई एम लाइक अ ड्रगी इन द फिल्म. मैं थोड़ा नशे में होता हूँ, थोड़ा बट रियल में नहीं होता. सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और माहौल बन गया था रियल. नाइस. एंड मुझे जब काम करने के लिए बोला गया था इस फिल्म में, तो मैं मानसी को पहले से तो जानती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऑन सेट मुझे क्या करना है. जब मैं सेट पे गई तो फिर मुझे पता चला कि मैं कौन सा रोल प्ले कर रही हूँ. लेकिन हाँ, कहते हैं लोग ना
कि खाने जब आदमी खाना खाता है तो मुंह जल जाता है, लेकिन मेरा इस फिल्म में रोल ऐसा है एक्चुअली कि देखने वालों की आंख जल जाएंगे. सो आई एम अ हॉट गर्ल इन दिस मूवी, सो दैट्स इट. सॉन्ग के बारे में बात करें तो हम तीनों आप सभी से पूछना चाहेंगे किस तरह का सॉन्ग है इस फिल्म के अंदर. लाइक 6-7 गाने हैं तो किस तरह के गाने हैं इस फिल्म में, कुछ जानना चाहेंगे? मुझे जो गाना मिला वो एक रोमांटिक सॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात है मानसी को पता था, उसका ब्रीफ बहुत अच्छा था कि मुझे ये चाहिए. उसको पता था कि क्या चाहिए उसको. तो डबिंग के टाइम पे इतना अच्छा उसका ब्रीफ था, तो हम लोगों को डबिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने गाना गाया. और संजीव दर्शन का इतना बेहतरीन म्यूज़िक है, काफ़ी पहले से हम लोग जानते हैं कि संजीव दर्शन किस लेवल के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं. तो इस फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक दिया. और आई लाइक टू से इट अगेन कि आई वुड लाइक टू थैंक मानसी कि इतने अच्छे गाने के लिए मुझे बुलाने के लिए. थैंक यू. हाय, मेरा नाम माधुरी पांडे है और मेरा इसमें बहुत ही खूबसूरत गाना है जीने मेरिए, जो मानसी को एक फोक सॉन्ग है उससे इंस्पायर्ड थी वो, और उसको हमने हिंदी में रिक्रिएट किया है और हमने अपना बेस्ट दिया है, जो फिल्म में भी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होता है. सो आई एम वेरी वेरी अटैच्ड टू दिस सॉन्ग एंड माई बेस्ट विशेस टू मानसी एंड द एंटायर टीम. थैंक यू. मेरा गला बहुत ख़राब है, सीरियसली बहुत खराब. इसमें देखिए, मैं अपनी तरफ से मैं अनुराग शर्मा हूँ, और जहाँ तक कि मूवी के म्यूज़िक का सवाल है, तो मानसी ने जिस तरह के सॉन्ग्स इसमें रखे हैं, उन सॉन्ग्स में आपको सभी खुशबू मिलेगी. अभी कृष्णा जी भी आपसे बात करेंगे, जिसमें इनका एक सॉन्ग है. मैंने इस फिल्म में गज़ल गाई है, और जैसा कि मैं लाइन ज़रूर पढ़ता हूँ, मेरे से बहुत रिक्वेस्ट हो रही है ऑलरेडी वो सुनकर. तो ये फिल्म में बहुत अरसे बाद एक गज़ल आ रही है. एक वक्त था जब हम अर्थ मूवी आई थी, जगजीत जी की गज़लें आई थी, और एक बहुत अरसे के बाद फिर जगजीत जी ने एक और सरफरोश में गज़ल आई. लेकिन एक काफ़ी अरसे के बाद मानसी वॉज वेरी क्लियर दैट शी वांटेड अ गज़ल इन दिस. और मैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने शी सच अ टफ टास्क मास्टर, वो जो सिचुएशन जैसी थी उसके हिसाब से उन्होंने मेरे से लिखवाया लिटरली, फिर मैंने कंपोज़ किया, फिर मैंने इसको गाया. तो अगर कहें तो 2 लाइनें आपके लिए गा भी देता हूँ, दोबारा ये शेर ही पढ़ देता हूँ कि वक्त इतना कभी ख़राब न हो हाथ में, वक्त इतना कभी ख़राब न हो हाथ में, जाम हो शराब न हो. तो ये गज़ल एक बहुत अरसे के बाद आ रही है मूवी में. मैं दुआ करता हूँ कि ये गज़ल भी मकबूल हो और ये इस फिल्म का पूरा म्यूज़िक मकबूल हो. इसमें जितने गाने हैं सब अलग अलग खुशबू के गाने हैं. तो बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ मानसी को. कृष्णा, कुछ आप कहना चाहिए? संगीत बहुत अच्छा है. मेरा नाम कृष्णा ब्योरा है, और संजीव दर्शन जी के साथ गाने का जो एक अलग एक्सपीरियंस है वो, बिकॉज जैसे उन्होंने अभी गज़ल की बात की, तो मेरा भी एक तरह से सूफियाना गज़ल है. सो इट्स लाइक अ डिफरेंट जॉनरा ऑल टुगेदर. सूफियाना गज़ल कह सकते हैं, है ना इसको.